ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਸੰਹਿਤਾ। ਹਠ ਯੋਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹਠ ਯੋਗ ਪ੍ਰਦੀਪਿਕਾ ਤੇ ਘੈਰਾਂਡਾ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਨੋਟਸ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਕੈਡਮਿਕ ਲੇਖ ਵੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਮਕਸਦ ਯਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਭਿਆਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਸਮਝੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਲਗਭਗ 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਦਵੈਤ ਵਿਦਾਂਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਦਵੈਤ ਵਿਦਾਂਤ ਯਾਨੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ 5 ਅਧਿਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਨਾੜੀਆਂ, ਜੀਵ, ਯੋਗ ਦੇ ਪੜਾਅ, ਫਿਰ ਆਸਨ, ਮੁਦਰਾਵਾਂ, ਕੁੰਡਲਿਨੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਏਕਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੰਹਿਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਯਾਨੀ ਜੀਵ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਯਾਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਦੀਵੀ ਹੋਂਦ, ਸ਼ੁੱਧ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਾਹ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਈਫਾਈ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਕਾਸ਼ ਵਾਲੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਇਸ ਏਕਤਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਕਲੌਤਾ ਰਸਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਜਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਸੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਸ ਭਰਮ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੀਏ? ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਅਮਲੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਯਾਨੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕਰਮ ਤਾਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕ ਕਰਮਕਾਂਡ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਯੋਗ ਸਕੂਲ ਕਰਮ ਯੋਗ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਕਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਲਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਮਝ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਇਸ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਗਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਸਿਰਫ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫਲਹੀਨ ਨੇ। ਫਿਰ ਯੋਗ ਦੀਆਂ 4 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਆਰੰਭ, ਕਟ, ਪਰਿਚੈ, ਨਿਸ਼ਪੱਤੀ। ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਧਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਨੇ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੰਤਰ। ਹਾਂਜੀ, ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ 3.5 ਲੱਖ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। 3.5 ਲੱਖ? ਹਾਂ, ਪਰ 3 ਮੁੱਖ ਨੇ। ਇੜਾ ਜਿਹੜੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਪਿੰਗਲਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਤੇ ਸੁਸ਼ੁਮਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਨਾੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁੰਡਲਿਨੀ? ਹਾਂ, ਕੁੰਡਲਿਨੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਪਤ ਸ਼ਕਤੀ। ਉਹ ਇਸੇ ਸੁਸ਼ੁਮਨਾ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 3.5 ਕੁੰਡਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਸਨਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ? 84 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਹਾਂ, ਜ਼ਿਕਰ 84 ਦਾ ਹੈ, ਪਰ 4 ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸਿੱਧਾਸਨ, ਪਦਮਾਸਨ, ਉਗਰਾਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਸ਼ਚਿਮੋਤਾਨਾਸਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਵਸਥਿਕ ਆਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਧਿਆਨ ਲੰਬਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦਾ ਵਹਾਅ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੁਦਰਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਦੱਸਿਆ ਹੈ? 10 ਮੁੱਖ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਮੁਦਰਾ, ਮਹਾਬੰਦ, ਖੇਚਰੀ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੁਢਾਪੇ ਤੇ ਮੌਤ ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਯਾਨੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਯੋਗੀ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ, ਪਥ ਯਾਨੀ ਯੋਗ ਲਈ ਸਹੀ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਘਿਓ, ਦੁੱਧ, ਮਿੱਠਾ ਭੋਜਨ ਇਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਨ 'ਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਤ, ਖੱਟਾ, ਨਮਕ, ਤੇਲ 'ਚ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੱਟਾ, ਨਮਕ, ਤਲਿਆ ਛੱਡਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਿਵ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਹਠ ਯੋਗ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਯੋਗ ਮਤਲਬ ਸੰਨਿਆਸ, ਤਿਆਗ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹ,
ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪਹੁੰਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟੀਏ, ਸ਼ਿਵ ਸੰਹਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਅਦਵੈਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਠ ਯੋਗ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਭਿਆਸ, ਆਸਨ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ, ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਗ੍ਰਹਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਸੋਚਣ ਲਈ। ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੰਹਿਤਾ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵਜਰੋਲੇਵਾਈ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਭੋਗਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਭੋਗਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ? ਹਾਂ, ਭੋਗਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਭੋਗ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੇ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ, ਅੰਤਿਮ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਚਾਹਤ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੱਚੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि भाई गहरी खुदशनासी ये तो बस दुनिया छोड़ने वालों का काम है। जी, ये ख्याल आम है। लेकिन क्या पुरानी हिकमत जो कदीम दानिश है वो घर बैठे मतलब अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी रूहानी तरक्की का कोई रास्ता बताती है? बिल्कुल बताती हैं। और इसी हवाले से आज हम एक खास किताब शिव संहिता को देख रहे हैं। शिव संहिता, ये नाम सुना है। ये हठ योगा की अहम किताबों में से है ना? जी हाँ, घिरंडा संहिता और हठ योगा प्रदीपिका के साथ ये 3 बुनियादी किताबों में शामिल है और इसकी निस्बत बराह रास्त भगवान शिव से की जाती है। ओह वाह, तो इसमें काफी गहरे राज होंगे फिर। यकीनन। इसके 5 अबाब हैं जिन्हें पटल कहते हैं, उनमें बहुत कुछ है। तो आज की हमारी ये गुफ्तगू शिव संहिता के बारे में है। हम कोशिश करेंगे कि इसका जो बुनियादी फलसफा है वो समझें, जी, और जो मुख्तलिफ रास्ते इसमें बताए गए हैं वो क्या हैं, और मशकों का अंदाज क्या खास है इसमें। बिल्कुल। खास तौर पर उन सामीन के लिए जो इल्म भी चाहते हैं और अमली तरीका भी। चलें फिर शुरू करते हैं। अच्छा, शिव संहिता की जो सबसे खास बात है ना, वो है इसका फलसफा। ये अद्वैत वेदांत और तंत्र, इन दोनों को मिलाती है। अद्वैत वेदांत यानी एक ही हकीकत, आत्मा या ब्रह्मण? जी बिल्कुल। और ये दुनिया जो है ना, ये माया है, एक इल्यूजन। जैसे रस्सी को सांप समझ लेना। ठीक। और ये कहती है कि जीवा यानी हम, इनफरादी रूह, वो उसी एक बड़ी रूह की चिंगारियां हैं, लेकिन अपने कर्मों में फंसे हुए हैं। तो ये तो हुआ वेदांत वाला हिस्सा। तंत्र इसमें कहाँ आता है? हाँ, यही वो इम्तिजाज है। देखें, वेदांत का मकसद है मुक्ति यानी आजादी, सही। जबकि तंत्र में जोर सिद्धियों यानी खास ताकतों और शक्ति, खासकर कुंडलिनी, उस पर होता है। शिव संहिता इन दोनों को साथ लेकर चलती है। अच्छा, मतलब सिर्फ जानना नहीं बल्कि उस इल्म के जरिए कुछ हासिल करना, कुछ बनना। बिल्कुल। ये सिर्फ दिमागी वर्जिश नहीं बल्कि जिस्म और तवानाई पर काम करने का पूरा निजाम है। तो क्या ये सबके लिए एक ही जैसा रास्ता बताती है या हर किसी के लिए अलग तरीका है? नहीं, यही इसकी एक और खूबसूरती है। ये साधकों को यानी रास्ते पर चलने वालों को 4 किस्मों में बांटती है। 4 किस्में? वो कौन सी? जी, मृदु यानी हल्के मिजाज वाले, फिर मध्यम यानी दरमियाने, फिर आधि मात्रक जो ज्यादा पुरजोश हैं, और आधि मात्रतम यानी जो इंतहाई संजीदा और पुरजोश हैं। ओ, तो हर एक की तबीयत के मुताबिक? जी हाँ, और हर किस्म के लिए मौजू योगा का रास्ता भी बताया है। मंत्र योगा, ले योगा। ले योगा ये क्या है? ये इर्तिकाज और तहलील का योगा है। फिर हथ योगा जो जिस्मानी मशकों वाला है, और आखिर में राज योगा जिसे सब योगाओं का बादशाह कहा गया है। वाह, ये तो बहुत मुनज्जम तरीका लगता है। हर किसी का ख्याल रखा गया है। जी, ये बहुत अमली किताब है। लेकिन सुना है इन सब रास्तों में एक चीज बहुत अहम है, गुरु। बिलाशुबा शिव संहिता में गुरु की अहमियत पर बहुत ज्यादा जोर है। उन्हें माँ, बाप, यहाँ तक कि भगवान का दर्जा दिया गया है। यानी गुरु के बगैर कामयाबी मुश्किल है। मतन कहता है कि सिर्फ गुरु से मिला इल्म ही फल देता है। ये सिर्फ मालूमात नहीं, रूहानी ताल्लुक है। सही। अब जरा उन मशकों की बात करें जो इसमें बताई गई हैं, जैसे लतीफ जिस्म, नाड़ियां, चक्कर। जी, किताब में ना लतीफ जिस्म यानी जो नजर नहीं आता उसका पूरा नक्शा दिया गया है। 72,000 नाड़ियों का जिक्र है। ये तवानाई की नालियां हैं। 72,000? जी, इनमें 3 सबसे अहम हैं, एडा, पिंगला और सुषुम्ना जो मरकजी है। एडा, पिंगला, सुषुम्ना, सुना है इनके बारे में। और फिर चक्कर हैं, तवानाई के मराकिस, और मूलाधार चक्कर में कुंडलिनी शक्ति, वो सोई हुई अजीम ताकत। और इस ताकत को जगाने के लिए प्राणायाम यानी सांस की मशकें। प्राणायाम तो समझे क्लीद है। नाड़ियों की सफाई और प्राण यानी जीवनी शक्ति को काबू करने का बुनियादी जरिया यही है। इसके फायदे क्या बताए गए हैं? सेहत तवानाई तो है ही, लेकिन 4 मराहिल बताए गए हैं, आरंभ से निष्पत्ति तक। और यह भी कहा गया है कि इससे सिद्धियां भी मिल सकती हैं, जैसे हवा में उड़ना। अच्छा, सिद्धियों भी? आसनों के बारे में क्या? जिस्मानी पोज? 84 आसनों का जिक्र तो है, लेकिन तफसील ज्यादा नहीं। जोर 4 अहम आसनों पर है, जैसे सिद्धासन, पद्मासन। मकसद जिस्म को साधना नहीं बल्कि मुराकबे के लिए तैयार करना है।
इस्तेकाम। समझ गई। और ये मुद्रा और बंध क्या है? एनर्जी लॉक्स? जी, ये बहुत खास तकनीक हैं। जिस्मानी कोफल हैं जो प्राण के बहाव को कंट्रोल करते हैं। जैसे मूलाबंध है, तवानाई को ऊपर उठाता है। और इसमें वो वज्रोली मुद्रा का भी जिक्र है जो घर वालों के लिए भी मुफीद बताई जाती है। हाँ, वज्रोली जैसी मुश्किल और ताकतवर मुद्रा का जिक्र है और कहा गया है कि सही तरीके से करें तो घर गृहस्थी वाले भी मुक्ति पा सकते हैं। ये बात वाकई अहम है कि घर वालों को अलग नहीं किया गया। जी, यही इसका एक मुनफरिद पहलू है। दूसरी मशकें जैसे नाद योगा, ध्यान? जी, नाद योगा यानी अंदरूनी आवाजें सुनना, धारणा यानी तवज्जो मरकूज करना और ध्यान यानी मुराकबा, ये सब भी शामिल हैं। तो अगर खुलासा करें, शिव संहिता दूसरी योगा किताबों से अलग कैसे है? मेरे ख्याल में दो चीजें। एक तो इसकी गहरी फलसफियाना बुनियाद जिसे ज्ञान कांड कहते हैं, और दूसरा इसका ज्यादा सबको शामिल करने वाला अंदाज। ये अलग अलग मिजाज के लोगों के लिए रास्ते बताती है और साफ कहती है कि घर गृहस्थी वाले भी छुपके से ही सही मशक कर सकते हैं। ये वाकई एक जमहूरी अंदाज है। और सिद्धियों यानी ताकतों के बारे में क्या रवैया है? उनका जिक्र है कि मिल सकती हैं, लेकिन खबरदार भी किया गया है कि इनमें अटकना नहीं है, मकसद नहीं है ये। सही, मकसद तो वही मुक्ति या आत्मज्ञान है। बिल्कुल, ये ताकतें रास्ते में आ सकती हैं, मंजिल नहीं। तो खुलासा ये हुआ कि शिव संहिता सिर्फ मशकें नहीं बल्कि जिंदगी का एक पूरा फलसफा है, रूहानी सफर का नक्शा है। जी, ये वेदांत की हिकमत, तंत्र की अमलियत और हथ योगा की तकनीक, इन सबको मिलाकर हर किस्म के इंसान के लिए, चाहे वो घर वाला ही क्यों ना हो, खुद को जानने का एक रास्ता देती है। बहुत खूब, ये वाकई गहरी बातें हैं। अच्छा, आखिर में सामीन के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। जरूर। शिवो संहिता कहती है कि अलग अलग रास्ते अलग अलग मिजाज के लिए हैं। तो अपने आप को देखते हुए, अपने सीखने का अंदाज, अपनी तबीयत, अपनी जिंदगी के हालात, इन 4 रास्तों में से मंत्र, लय, हथ या राज योगा, कौन सा रास्ता आपको लगता है कि आपके लिए ज्यादा मुनासिब है? और ये इंतखाब आपके अपने सफर के बारे में क्या बताता है? क्या आप जानते हैं कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति सोई हुई है जो ब्रह्मांड को हिला सकती है? और क्या हो अगर मैं कहूं कि उस शक्ति को जगाने की गुप्त कुंजी एक प्राचीन ग्रंथ में लिखी है जो आपको काल और मृत्यु के चक्र से भी मुक्त कर सकती है? आज हम सीधे उस स्रोत से ज्ञान प्राप्त करेंगे जहां स्वयं महादेव ने अपनी प्रिय पार्वती को योग्य हो गुह्य रहस्य बताए जो साधकों की पीढ़ियों से छिपे रहे। ये है शिव संहिता, योग का एक ऐसा महासागर जिसमें ज्ञान, दर्शन और साधना की अनमोल मणियां छिपी हैं। शिव संहिता केवल आसनों का संग्रह नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है। ये ग्रंथ सीधे भगवान शिव और पार्वती के बीच हुए संवाद पर आधारित है। इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि ये योग को केवल सन्यासियों के लिए नहीं बल्कि गृहस्थों के लिए भी उतना ही सुलभ बताता है। ये हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने शरीर को ही एक ब्रह्मांड समझ सकते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी मेरू पर्वत है और हमारे भीतर बहने वाली नाड़ियां पवित्र नदियां हैं। ग्रंथ में 3.5 लाख नाड़ियों का वर्णन है, जिनमें से ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना सबसे प्रमुख है। ईड़ा चंद्र नाड़ी है जो शरीर को शीतलता देती है और पिंगला सूर्य नाड़ी है जो ऊर्जा और ताप का संचार करती है। जब इन दोनों नाड़ियों में प्राण का प्रवाह संतुलित होता है तब सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा का ऊर्ध्व गमन होता है और कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। कल्पना कीजिए एक दिव्य सर्पिणी की जो आपके मूलाधार में 3.5 फेरे लगाकर सोई हुई है। यही कुंडलिनी शक्ति है। जब ये जागृत होती है तो ये सुषुम्ना के मार्ग से ऊपर उठती है, एक एक चक्र को भेदती हुई, ठीक वैसे ही जैसे एक बिजली का कौंद अंधेरे को चीर देती है और अंत में सहस्रार में अपने शिव से मिलकर परमानंद में विलीन हो जाती है। हजारों आसनों के बीच शिव संहिता केवल 4 को ही सिंहासन प्रदान करती है: सिद्धासन, पद्मासन, पश्चिमोत्तानासन और स्वस्तिकासन। क्यों? क्योंकि इसका लक्ष्य शरीर को थकाना नहीं बल्कि उसे एक अचल मंदिर बनाना है जिसमें आप प्राण और चेतना की सर्वोच्च शक्तियों को प्रतिष्ठित कर सके। इसमें 10 शक्तिशाली मुद्राओं का वर्णन है, जैसे महामुद्रा, खीचरी मुद्रा और वज्रोली मुद्रा, जिनके अभ्यास से साधक न केवल रोगों से मुक्त होता है बल्कि सिद्धियां भी प्राप्त कर सकता है। शिव संहिता का सार यह है कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि आत्मज्ञान का मार्ग है। ये हमें सिखाता है कि असली मुक्ति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अपने भीतर की यात्रा करने में है। तो अगर आप भी अपने भीतर की इस अद्भुत शक्ति को जगाना चाहते हैं तो हमारे साथ इस यात्रा पर चलिए। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी जानकारी चूक ना जाए। याद रखिए, शिव संहिता का मार्ग शरीर से शुरू होकर आत्मा तक जाता है। ये अद्वैत वेदांत के ज्ञान और तंत्र की शक्ति को मिलाकर हमें सिखाता है कि हम केवल इस दुनिया के यात्री नहीं बल्कि अपने भीतर पूरे ब्रह्मांड को समेटे हुए एक योगी हैं। ऊर्जा और चेतना के इस संगम पर मैं आपसे विदा लेती हूँ। आशा है आप अपने भीतर के शिव को पहचानेंगे और योग्य इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।